ways. That's how it looks like in lateral position and in the posterior segment. So upper 7 are the cervical, then thoracic 12 vertebrae, then 5 lumbar vertebrae, 5 sacral vertebrae, and 4 are the coccygeal vertebrae. Basically, this last one, the coccyx are the rudimentary vertebrae which are present in the bodies. Then these vertebrae are mostly for the formation of the tails, as we do not have a tail right now, but bones still we have in the pelvic girdle. Most of the time, have an inflammation present over there that is called as a tailbone inflammation. And this is the normal structure which is present in the body with curvatures. जैसा हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम सीधा नहीं होता, वो दो जगह पे कर्व्ड होता है. हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम, it's in general it's also called as the spinal column or the backbone. It is the central axis of the body. It supports the body weight and transmits it to the ground through the lower limbs. Basically पूरा body का weight in upper limb, lower head and neck ये transfer करता है lower limb को, and it just supports carry the body. Vertebral column. Vertebral column is made up of, as I just mentioned, that is of 33 vertebrae, 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 4 coccygeal. In thoracic, lumbar, and the sacral region, the number of vertebrae corresponding to the level of spinal nerves. Basically, this vertebral column is an important bony structure which prevents the spinal cord within that, and by opening the opening of the vertebral column, spinal nerves just comes with spinal cord, and they are just distributed all over the body. So each nerve is just corresponding to the same level. But in the cervical, having 8 cervical nerves, uh, uh, just starting with the first to 7 सेम होती है, लेकिन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेस के नीचे से भी एक नर्व निकलती है, and that is the 8 cervical nerve. Coccygeal region में only 1 coccygeal nerve होती है, बाकी nerves वैसे होते हैं. There are 1 pairs of the spinal nerves which are just arising from the spinal cord which is present in the vertebral column. So as a bony structure भी important है, for the protection of the spinal cord भी important. Then sometimes vertebrae is also grouped according to the mobility. Group होता है mobility का, उसके कारण भी वो divide होती है. First one, the movable vertebrae, they are called as the true vertebrae, because there are only 24, and the fixed vertebrae are present in the sacrum and the coccyx. Sacrum मैंने यहाँ पे भी include किया है, इससे पहले भी हमने sacrum देखा है. It is a fusion of 5 sacral vertebrae. Coccyx is the fusion of 4 coccygeal vertebrae. तो बाकी के जो ऊपर के है cervical, thoracic and the lumbar, they are 24 vertebrae. They are just responsible for the movements of the backbone. जब जो भी मूवमेंट करते हैं तो ये ऊपर के वर्टिब्रेज में होते हैं. तो लंबर के बाद चारों फ्यूजन है, इसलिए सैक्रम कलेक्टिवली कॉल्ड एज सैक्रम. लंबोसैक्रल जहां पे लंबर वर्टिब्रे अटैच होती है विद द सैक्रम, वहां से वो मूवमेंट होती है. एंड कॉक्सिक्स ये डायरेक्टली अटैच होता है विद द सैक्रम. अप्रॉक्स लेंथ, it's 70 centimeter in males and 60 centimeter in females. Basically बॉडी की हाइट जो होती है उसके हिसाब से भी ये थोड़ा फार वेरी होता है. तो इट्स इन रेंज अबाउट 70 to 60 सेंटीमीटर. बेसिकली बोन्स या ये उतने ही होते हैं, जैसे बाकी जगह पे वेरिएशन होता है, रिब्स में वेरिएशन होता है, कभी एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स होते हैं. They are thus normally present in the count of 33 only. Then starting with curvatures, बोला कि बहुत बार हमने देखा है लास्ट में ये सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन भी प्रॉपर कैसे होनी चाहिए दिया है. जो कर्वेचर होते हैं, 2 प्रकार के कर्वेचर होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी, एट द प्रेजेंट ऑफ द बर्थ ड्यू टू द शेप ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज. वर्टिब्रल की बॉडीज होती है, उसके शेप के कारण वहाँ पे 2 कर्वेचर होते हैं. दोस आर रिलेटेड विद द thoracic and the sacral one. Means सबसे पहले यहाँ पे cervical होता है, जो rib cage है वहाँ पे thoracic है. Just below the rib cage having 5 lumbar, then sacrum and then coccyx. So at the birth having curves towards the thoracic and the sacral, but secondary curve
आर द पोस्चरल वन मेनली ड्यू टू शेप ऑफ द इंटरवर्टिबुलर डिस्क। ये सबसे पहले बॉडीज के कारण थे, इंटरवर्टिबुलर डिस्क डेवलप हुई, उसके कारण दो कर्व वहां पे प्रेजेंट थे, फर्स्ट वन द सर्वाइकल एंड द लंबर। उसके बाद जब डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हम हमारा पोस्चर जिस तरीके से होता है उस तरीके से भी ये कर्व थोड़े से चेंज होते हैं। नॉर्मली आर द नॉर्मल कर्व्स, फिर कुछ डिसीज में कर्व्स बढ़ते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो ऐसे डिसीज कंडीशन में फिर बाकी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे लोअर बैक पेन। अगर आपकी हमने पेशेंट्स या हमने इतने लोग देखे होंगे जिनकी पीली बड़ी होती है, मोस्टली इन द ओबेस पर्सन। तो ऐसे कंडीशन में जो अलाइनमेंट होती है बॉडी की, वो अलाइनमेंट चेंज होती है टुवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट, तो वहां पे लंबर कर्व बढ़ जाता है। अब कर्व बढ़ने के कारण अगर ये नॉर्मल है वर्टिब्रल कॉलम और इसमें दो जगह पे कर्व है तो वो नॉर्मल कर्व होती है, लेकिन अगर कर्व बढ़ गया तो जो वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में है, उसके जो नर्व्स स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्रेस होते हैं। इसलिए भी ये कर्वेचर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। The cervical curvature appears during the 4th to 5th month after when the infant starts supporting to the head, means जब हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों को हेड सपोर्ट करना नहीं आता, बाद में जब हेड सपोर्ट करना आता है तो ये नॉर्मली कर्व्ड आता है। लंबर कर्व बिटवीन 12 to 12 month when child assume to upright posture, means नॉर्मल जो प्रेजेंट होता है बाइबल थोरेसिक और सैकल कर्व होते हैं, जब वो हेड ग्रिप करता है तो सर्वाइकल कर्व डेवलप होता है, एंड जब वो चलना स्टार्ट करता है तो लंबर कर्व डेवलप होता है। तो दीज आर नॉर्मल कर्व्स, दिस इज सर्वाइकल कर्व, दिस इज थोरेसिक कर्व। मींस यहाँ पे एक कर्व आ गया, फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गया, थोड़ा सा बैकवर्ड चला गया, फिर लंबर और फिर सैकल। तो दिस टाइप ऑफ कर्वेचर्स आर प्रेजेंट नॉर्मली इन द vertebral column. This is about the sagittal plane, and then in the coronal plane, anterior to posterior, sagittal दो हिस्सों में बॉडी को डिवाइड करता है, that is right and left. कोरोनल प्लेन दो हिस्सों में डिवाइड करता है, that is anterior to posterior. तो हमने ये देखा कि अगर sagittal plane राइट टू लेफ्ट में अगर देखा तो हमने वो पोस्चर्स देखे थे, वो कर्वेचर देखे थे। अगर anterior to posterior जाएंगे तो they are slightly lateral in the thoracic region, convexity towards the लेफ्ट साइड में। अगर पीछे से हम बॉडी देखेंगे कोरोनल प्लेन में तो वो थोड़ा सा कर्व लैटरल टुवर्ड्स द थोरेसिक रीजन देखेंगे, ये भी नॉर्मल होता है। तो बेसिकली ये जो कर्व्स हमने देखे थे कर्वेचर्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ ये जो कर्व्स होते हैं ये नॉर्मल किस एक्सटेंट में होते हैं उस हिसाब से भी हम योगासन या प्राणायाम योगासन या आसनास कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर इसके आसनास और इसके अलाइनमेंट के अलग आसन होते हैं, वो भी हमें देखने पड़ते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर बेसिकली दे हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजेस व्हिच आर प्रेजेंट in the curvature of the spinal cord. First one, the scoliosis, kyphosis. One is related with the lordosis, kyphosis of the spine curved abnormal in the coronal plane. जब हम coronal plane में जाएंगे तो उसका कर्व थोड़ा सा चेंज होता है। kyphosis during causes the spine abnormal in the sagittal plane. अगर sagittal plane में हम देखेंगे और उसकी कर्व चेंज है, that is the kyphosis. जैसे हम पैर होता है पीठ पे, it's related with the kyphosis. पिक्चर्स में थोड़ा से ज्यादा दिए हैं, इतने नहीं। नॉर्मल कर्वेचर्स भी नॉर्मली भी स्कोलियोसिस के पेशेंट हमें देखते हैं। अगर आप कभी चलते और देखोगे, अगर ये होगा कोई अपराइट पोजीशन में जा रहा होगा तो किसको आदत होती है ऐसा एक कंधा ऊपर करके चलने की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदत नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलाइनमेंट चेंज होता है इन द कोरोनल प्लेन, और वो अलाइनमेंट के कारण एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है। अगर हमने एक्सरे निकाला प्रॉपर, सर्वाइकल एक्सरे भी निकाला, तो उसमें भी हम देख सकते हैं सर्वाइकल टू थोरेसिक में कि वो थोड़ा सा मूव हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट या टुवर्ड्स द राइट, इस साइड का कंधा ऊपर जाता है। और ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैक पेन सॉरी सर्वाइकल पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, हैविंग द टिंगलिंग सेंसेशन और द अपर लिम्ब, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। काइफोसिस हम लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो पोजीशन ही दिखती है हमें, वो झुका हुआ चलता है। लॉर्डोसिस, ये जो मैंने बोला था लंबर लॉर्डोसिस, दिस इज सर्वाइकल लॉर्डोसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस लॉर्डोसिस, दिस कर्व्ड ऑफ लंबर कर्व वो एक्सटेंड होती है या डीप होती है, दैट इज इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन, दिस इज कॉल्ड एज एन लंबर लॉर्डोसिस।
ये मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी बेली बड़ी है, ऐसे इसमें नॉर्मली ये दिखता है। और हमने ये देखा होगा कि अगर बेली बड़ी होती है तो लोअर बैक पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी इस कारण होते हैं। नॉर्मल हिंदी जब स्पाइनल कॉर्ड रहा तो वो इस तरीके से दिखेगा, लंबर लॉर्डोसिस में वो इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे अगेन कर्व चेंज हुआ है, वो सर्वाइकल इनर साइड में चला गया, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर्व हमें मिलता है, दैट इज द लंबर सॉरी सर्वाइकल लॉर्डोसिस। तो ये तीन कंडीशन आर रिलेटेड विद द मोस्टली रिलेटेड विद द कर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मल कर्व्स नॉर्मली भी होती है, लेकिन अगर कर्व ज्यादा हो गए या एबनॉर्मल रहे तो ये कंडीशंस होती है। और हर कंडीशन में बैक पेन कॉमन है, लेकिन अगर कर्व ज्यादा है तो tingling sensation भी हो सकती है ड्यू टू द compression ऑफ द नर्व्स। तो दिस इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम एंड नर्व्स। जस्ट गो वन बाय वन पार्ट्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रास। जो हमने वर्टिब्रास देखे, दे हैविंग द 33 वर्टिब्रास प्रेजेंट ओवर देयर। पर्टिकुलरली हर वर्टिब्रास के कॉमन पार्ट सेम होते हैं। एवरीवन हैव एन बॉडी, देन पेडिकल्स, then the lamina. Uh, After the lamina, they having the vertebral filament, spinous process, transverse process, superior articulating process, and the inferior articulation process. Just go one by one. The body, यहाँ पे फिगर में मैंने मेंशन की है, this is the body. Then body is connected with the lamina by the pedicle. These two are the pedicle. This is the lamina. This is the transverse process. This is the posterior is the spine. This is again the lamina. This is the ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, तो एक के ऊपर एक वर्टिब्रा होती है, तो एक दोनों भी जॉइंट फॉर्म करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जॉइंट फॉर्म करते हैं, तो दोनों साइड में हमें आर्टिकुलेशन प्रोसेस मिलता है। तो ये जो अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ये दूसरे वर्टिब्रास के लोअर आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ फ्यूज होता है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक वर्टिब्रास फिक्स होते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा और एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस दिखता है, दैट इज द डेमी फैसेट रिलेटेड विद द रिब्स। जैसे आगे थोरेसिक वर्टिब्रस देखेंगे तो इसमें पर्टिकुलर आएगा। एंड दिस इज द बॉडी। वर्टिब्रल डिस्क होती है वो भी इसी पे प्रेजेंट होती है। स्पाइंस अगर हम पीछे की ओर टच करते जाएंगे तो हमें जो बोनी प्रोमिनेंस मिलता है, इट इज ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। ये जो ऊपर से लेकर हम नीचे तक जाते हैं, तो ये जो ब्रोनी प्रोमिनेंस हमें टच होगा क्या स्पाइनस प्रोसेस है। जस्ट गो वन बाय वन। बॉडी लाइज एंटीरियर एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्पाइन के पोस्टीरियरली आया, डायग्राम के हिसाब से लिखा है दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। देन it's shaped like short cylinder being rounded from side to side, having flat or upper and lower surfaces, means दोनों flat होते हैं, lined होते हैं, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाए। Then pedicles, they are the right and the left, shorts but round bars projects backward। अब वो पीछे की ओर जाएंगे, बैकवर्ड और लैटरली जाएंगे। मीन्स ये एंटीरियर पोस्चर था, दिस इज द एंटीरियर वन। तो यहाँ से ये बैकवर्ड गए और दोनों भी लैटरली गए, इसलिए ये बैकवर्ड अगर बॉडी है तो वहां से मूव होते हुए टुवर्ड्स द लैटरल एस्पेक्ट। देन पेडिकल्स कंटिन्यूस पोस्टीरियर मेडियली द वर्टिकल प्लेन कॉल्ड एज द लैमिना। अब वो इसी में फ्यूज हो गया, दिस इज द लैमिना। देन it's bounded by the posterior aspect of the body, side by the pedicles behind the lamina there is a large gap called as a vertebral foramen। ये जो गैप है, this one, this is called as a vertebral foramen through which the spinal cord is passed। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी में होती है, वो इसी ओपनिंग से पास होती है, दैट इज द वर्टिब्रल फोरामेन। देन स्पाइनस प्रोसेस मैंने बताई, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी। Spinous process and the transverse process serve as the levers for the muscles acting on the vertebral column। Basically, these processes they are just away from the main structure of the vertebrae। तो क्योंकि बाजू के जितने भी मसल्स है, they are all originated or mostly they having the insertions, वो वहाँ पे अटैच होते हैं to the transverse process और the spinous process में। spinous process में अलग से एक लिगामेंट भी होती है, ताकि वो जो वर्टिब्रीज है वो एक लाइन में रहे। ठीक है, जो अलाइनमेंट नॉर्मली होती है वो एक दोनों वर्टिब्रीज जहाँ से
यूज्ड होते हैं, दैट इज सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, वहां पे अलग छोटी छोटी लिगामेंट्स होती है, वो उसको फिक्स करते हैं और ऊपर से लेके लिगामेंट के बाद लिगामेंट होती है, ऊपर से लेके मींस फ्रॉम द C1 last having single ligament which just align the spinous process, तो ये भी अटैचमेंट का काम देती है, they are mostly as a levers और muscle active means जो भी मूवमेंट हम बॉडी की करते हैं they are related with this process and muscles related with this process only. Then superior articulating process और inferior articulating process, ये अभी मैंने बताया कि एक के सुपीरियर दूसरे के इंफीरियर के साथ आर्टिकुलेट होती है, तो ये हर वर्टिब्रेस में हमें मिलेंगी. Just go one by one. Cervical vertebrae, there, as I'm just discussing, there are 7 in numbers. उसमें all having different shape. First, second, and 7 they are called as an atypical. वो जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा वर्टिब्रेस का, वो उस हिसाब से नहीं होती, थोड़ा सा अलग होती है. अब यहाँ पे एक चीज अलग होती है टिपिकल वर्टिब्रेस से, that is called as an foramen. That is called as an foramen transversium. This one. यहाँ पे हमने बॉडी देखी, बॉडी के बाद पेडिकल थे, देन लेमिना था और उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस थी. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पेडिकल्स होते हैं, वहाँ पे एक फोरामेन ट्रांसवर्सियम होता है, दैट इज फॉर द वर्टिब्रल आर्टरीज व्हिच आर एंटरिंग इन द ब्रेन. जो हार्ट से एक ब्रांच निकलती है, हार्ट से आर्च ऑफ आर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती है, उसमें से कैरोटिड से वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती है पोस्टीरियरली ऊपर की तरफ जाती है टुवर्ड्स द सेरेबेलम. तो वो अंदर जाते वक्त यहाँ पे अलग से ओपनिंग देती है, इट इज कॉल्ड एज एन फोरामेन्स ऑफ ट्रांसवर्सियम. मींस ये तो वर्टिब्रल फोरामेन है, वर्टिब्रल कैनल है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, लेकिन उसके अलावा दो ओपनिंग होती है इन सर्वाइकल वर्टिब्रस, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ट्रांसवर्सियम. बाकी स्ट्रक्चर्स छोटे और रीजन के हिसाब से, जैसे बॉडी हमने देखी कि वो छोटी है पर एंटीरियरली रहेंगी, सुपीरियर सरफेसेस कॉन्केव ट्रांसवर्सली, अब ऊपर के साइड में थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी होती है, नीचे के साइड में कॉन्वेक्सिटी होती है. इंफीरियर सरफेस इज द सैडल शेप बीइंग कॉन्वेक्स बोला. एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस दे आर जस्ट रिजेंबल विद द अदर वर्टिब्रेस, जो कॉमन वर्टिब्रेस होती है उसी की तरह से ये होती है. वर्टिब्रल फोरामेन ये बड़ा होता है क्योंकि जो साइज होती है बॉडी की यहाँ पे छोटी होती है, वर्टिब्रेस की भी साइज छोटी होती है. वर्टिब्रल कॉलम की साइज कॉमन है, मींस डायमीटर से 2 जगह पे वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड बढ़ता है, दैट इज रिलेटेड विद वन रिलेटेड विद ब्रैकेट एंड लंबर. दो जगह पे सिर्फ डायमेंशन बढ़ता है स्पाइनल कॉर्ड का, दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रेस है और नीचे L1 to S3 यहाँ पे लंबर वर्टिब्रेस है. इसी पोजीशन में उनको एक्स्ट्रा स्पाइनल नर्व्स या एक्स्ट्रा नर्व्स लगते हैं, क्योंकि यहाँ पोजीशन में वो अपर लिम्ब को सप्लाई करता है एडिशनल, और लोअर पोजीशन में वो एडिशनल सप्लाई होता है नर्व का, दैट इज टुवर्ड्स द लोअर लिम्ब. तो यहाँ पे 2 जगह पे स्पाइनल कॉर्ड डायलेट है, तो उस हिसाब से बाकी जो वर्टिब्रल फोरामेना होता है वो एडजस्ट करता है. तो यहाँ पे बॉडी छोटी है, बाकी स्पाइनल कॉर्ड सेम होता है, इसलिए फोरामेन यहाँ पे एज कंपेयर्ड विद अदर्स थोड़ा सा बड़ा दिखेगा. तो लार्जर वर्टिब्रल फोरामेना है एज कंपेयर्ड विद द बॉडी, ट्रायंगुलर इन शेप होती है. देन वर्टिब्रल आर्च, बेसिकली आर्च हमने स्टार्टिंग में देखा कि तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टिब्रल आर्च, इंक्लूड्स द पेडिकल, लैमिना, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर में आते हैं. सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, आर्टिकुलेट्स द पिलर्स, मींस अभी जैसे हमने अगर सैक्रम याद होगा तो वो एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो दे आर जस्ट लुक लाइक पिलर, मींस 4 अलग-अलग सेगमेंट्स वर्टिकल सेगमेंट वो पिलर जैसे लगते हैं. यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, ये भी हमें है. एज अ डिस्क्रिप्टिव मैंने पूरा इंक्लूड किया है हर एक इसमें, सब
जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग है, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। The transverse process are facing by the foramina transverse versarium। अभी जो मैंने बोला कि लैमिना के नीचे जहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पे फोरामिना है, that is the foramen transversalium। Each process of the anterior and the posterior roots ends in the tubercle joining by the costotransverse bar। वो सिर्फ बार में सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, जब दूसरे के ऊपर चिपकते हैं। अलग जो बात है, स्पाइन हमने कॉमन वर्टिब्रेज में देखी, सिंगल having the single pointed one। यहाँ पे स्पाइन शॉर्ट होती है और बाइफिड होती है। अगेन दे हैविंग द वेसल्स प्रेजेंट ओवर देयर, जो बाइफिड स्ट्रक्चर है, और ए लिगामेंट प्रेजेंट इन दैट नॉच, दैट इज द लिगामेंटम न्यूची। बताया कि जो कनेक्ट करती है एक दूसरे को स्पाइंस, दैट इज द लिगामेंटम न्यूची, लिगामेंटम टेवा। तो यहाँ पे लिगामेंटम न्यूची होती है जो बाइफिड स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ स्पाइनस प्रोसेस है, ये वाली आप देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे बाइफिड प्रोसेस है that having the ligamental nuclei attachments relations। ये आगे जो मसल्स है उसी में हम कंक्लूड करेंगे इसको। देन अलग जो तीन वर्टिब्रेज हमने बताया था, दैट इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन सेकंड वन एंड द थर्ड वन। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बेसिकली इट इज कॉल्ड एज एन एक्टस। सेकंड वन दैट इज द एक्सिस। सिर्फ नाम दिए हैं एनाटॉमिकली दूसरे, बाकी किसी भी अटिपिकल वर्टिब्रा को अलग नाम नहीं दिए, सिर्फ यहाँ पे अलग नाम दिए, दैट इज एटलस एंड द एक्सिस। एटलस इज अ रिंग शेप एंड हैज नो बॉडी। जैसे हमने टिपिकल बॉडी का स्ट्रक्चर हमने देखा है, वर्टिब्रेज का स्ट्रक्चर देखा है, तो वहाँ पे बॉडी है, वर्टिब्रल फोरामेना है। यहाँ पे बॉडी ही प्रेजेंट नहीं होती। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। सॉरी। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, वहाँ पे बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्कल होता है, तो वहाँ पे ऑसिपिटल बोन सबसे नीचे होता है, तो वो ऑसिपिटल बोन्स के नीचे एग्जैक्टली प्लेस होता है, तो वो उसी को सराउंडेड स्ट्रक्चर देता है। वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली फ्यूज है। जैसे ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिटल बोन में यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में वो फ्यूज हो गया, ताकि वो मूवमेंट को इजी जाए। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी की बॉडी नहीं रहती, बाकी के स्ट्रक्चर नहीं रहते, सिर्फ फोरामेन ट्रांसवर्सियम होता है यहाँ पे। दिस इज फोरामेन ट्रांसवर्सियम, दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ पे बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट होती है, फिर बाकी के स्ट्रक्चर्स। ये जो बोन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एन ओडेंटल प्रोसेस। ये प्रोसेस अलग बोन की है, दैट इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज एन एक्सिस। मींस अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है या स्कल है, जो मूव हो रहा है, मूव होने के लिए वहां पे पुली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो नेक्स्ट बोन पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एन डेंस ओडेंटल प्रोसेस। ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। यहाँ पे नॉर्मल बॉडी तो प्रेजेंट है, बट हैविंग द एलिवेशन प्रेजेंट ओवर देयर, दिस इज द डेंस लाइक एलिवेशन। अब ये एलिवेशन ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से पास होता है। मींस अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से वो पास हुआ और वो फिक्स हुआ द ऑसिपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल, और फिर वो मूव होता है। इसलिए ये जो पुली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस इज दिस मूवमेंट इज जस्ट पुली लाइक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक पाइवोट है जिसके अराउंड स्कल मूव हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर या दिस स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द एटलस और द ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है जॉइंट विद इन द एटलस, मींस फर्स्ट सर्वाइकल एंड ऑसिपिटल, सो दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज एन अटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। जब हमने ये जॉइंट्स पे देखा था, अटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ये जो मूवमेंट होती है, कॉमनेस्ट मूवमेंट
तो जब पार्किंसोनिज्म के पेशेंट आते हैं, ये मूवमेंट जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है, ट्रिमिंग मूवमेंट ऑफ हेड, तो ये जॉइंट अफेक्ट होता है। आयुर्वेद में इसको विद रुकाटिका मर्म ये किया है कि ये अगर मूवमेंट यहाँ पे अगर डैमेज हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मूवमेंट फ्रीक्वेंटली होती रहती है। दूसरा जो हम जुडिशियल हैंगिंग देखते हैं, जब हैंगिंग होती है जुडिशियल, तो एक झटके से उनको फांसी दी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ऑर्डनटाइट प्रोसेस होती है जहाँ पे मूव हो रहा है, वो ब्रेक हो जाती है। वो ब्रेक होने के कारण फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल डैमेज होता है। देन उस कारण आगे के और ऑर्डनटाइट प्रोसेस और चलेगी, तो जो ये होता है वो सांस नहीं ले पाता और फोर्थ वेंट्रिकल भी डैमेज होता है, वो भी वो ऑर्डनटाइट प्रोसेस से होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमने मूवीज में देखा होगा कि वो जो सडन जर्क से हैंगिंग डेथ देते हैं, वो इस कारण है कि ये प्रोसेस टूट जाए और उसकी डेथ हो जाए। इसलिए हैविंग सेवरल टाइप्स ऑफ हैंगिंग, पार्शियल हैंगिंग होता है जिसमें पैर जमीन पे रहते हैं और सिर्फ हैंगिंग होता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ सांस कम कम होती जाती है, इस कारण डेथ होती है। लेकिन अगर जुडिशियल हैंगिंग में वो झटके से ये हो गया तो ऑर्डनटाइट प्रोसेस का जो टिप होता है वो फोर्थ को भी डैमेज करता है। दे आर जस्ट डैमेजिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आल्सो, उस कारण एकदम से यहाँ पे मौत हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, रिंग शेप एटलस होता है। Then posterior arch forms about 2/5 of the ring and is much longer than the anterior arch. बाकी का जनरल डिस्क्रिप्शन है, ये इस तरीके से दिखता है। दिस इज द आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, द सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट और द occipital part of the skull. Then this is posterior tubercle, this is the anterior tubercle। जो spinous process और बॉडी है उसी का ये पोर्शन है। पूरी प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन उनके आर्टिकुलेटिंग ट्यूबरकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन बाकी डिस्क्रिप्शन एज सच सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मैटर के लिए दिए हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोजेक्ट्स लैटरली फ्रॉम द लैटरल मास, इट इज यूजुअली लॉन्ग एंड कैन बी फेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द नेक बिटवीन द एंगल एंड द मैंडिबल। तो यहाँ पे ये हमने देखा है स्ट्रक्चर, दिस इज द मैस्टर्ड प्रोसेस। ओके, मैस्टर्ड प्रोसेस के नीचे अगर आप हम आएंगे तो यहाँ पे साइलेंट प्रोसेस हमें दिखती है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो अगर वहां से डीप हम यहाँ पे पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसवर्स प्रोसेस हमें पाल्पेट होती है। पर थोड़ा सा यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर नर्व भी यहीं से बाहर निकलती है, साइलेंट प्रोसेस के बाहर से। यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल रहता है उस कारण। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट वर्टिब्रे। देन सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे, शॉर्ट में मैंने इसका इंपॉर्टेंट बता दिया था। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सिस। आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ veins or the odontic process which is strong tooth-like process projecting upward from the body. The veins usual volutes represent the center of the body of the atlas. Then body सेम बाकी का डिस्क्रिप्शन है। बॉडी सुपीरियर सरफेस होता है, लेंस होता है जहाँ पे ऑर्डनटाइट प्रोसेस होती है। इंफीरियर सरफेस प्रोमिनेंट एंटीरियर मार्जिन प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, एंटीरियर सरफेस में हैविंग रिच। then vertebral arch, same pedicle. Dr. Amol, Sir? A small question. That Sir? means the first vertebra, the atlas, is not a bony structure. No, sir. This is the bony structure only. This is bony structure, of course. What about dens? What about dens? Sir, dens is actually this is ring-like structure. Means first vertebra is just Yes. ring-like structure, and dens structure that just passing. Means ये जो picture में मैंने बताया था, यहाँ पे this is vertebral foramina. Okay, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, that is the transverse ligament, और उसके नीचे पीछे यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी नहीं होती है, वहां पे बॉडी की जगह पे पीछे ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग से यहाँ से वो डेंस स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। What is that made of? Dens? Sir, that is the bony portion only. This is also bone or what? Yeah, bone. That This is a is bone. part of the second cervical bone. Means जो एक्सिस बोन है सर्वाइकल बोन, उसी का जो बॉडी है, जो अपर सेगमेंट यहाँ से जो बाहर निकला है ये वाला, जो अपर पोर्शन है वो इनर साइड में जाता है एक्सिस सॉरी एटलस के, और उसी के बीच में फिर स्कल मूव होता है।
Okay. Skull movement. Okay. मीन्स दोनों जो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वहां पे सिर्फ फिट बैठा है और उसको Okay. मूव करने के लिए कोई तो भी एक टूल लगेगा, जैसे पुली लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो भी लगेगा, उसका हाँ. उसके लिए एक मेन स्ट्रक्चर सेकंड वर्टिब्रा से ऊपर की तरफ जा रहा है Okay. 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 और उसमें वो फिर मूव होता है, जो लैटरल सर्वाइकल जो लैटरल और मेडियल रोटेशन होता है या हम एंटीरियर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं वो इसके बीच में होता है। मींस बेसिकली तो फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज द एटलस, उसी के अराउंड मूव हो रहा है क्योंकि दोनों जॉइंट जो फॉर्म हो रहा है वो ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में फॉर्म हो रहा है, ना कि एक्सिस के। पोर्शन ऑफ द एक्सिस आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, दैट इज द ओडोंटाइट प्रोसेस। तो ये जो पोर्शन है बोनी पोर्शन वो इंसर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। So that means all movements, all broadly neck movements is around Yes, sir. dens. It's Yes, a sir. it's Yes. forward, backward, sideward, or twisting. All bendings are Yes, yes. That is around just related dens. with the अगर Uh, स्कल मूव हो रहा है, mm, अगर स्कल के साथ हम वर्टिब्रास भी अगर मूव कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ अगर मूवमेंट हम देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है तो ये सिर्फ डेंस के अराउंड नहीं हो रही है, ये मूवमेंट कंप्लीट सर्वाइकल वर्टिब्रास की हो रही है। yes, yes, yes. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स है, लेकिन आउट ऑफ Yeah. विच 24 आर मूवेबल वन। तो ये Hmm. जो वर्टिब्रल्स की मूवमेंट है ये भी मूव होती है, पर सिंपली अगर हम सिर हिला रहे हैं ये हाँ. मूवमेंट है, ठीक है। अगर Okay. कंधे स्टेडी है तो अगर ये मूवमेंट है तो इट इज अटलांटा हॉस्पिटल मूवमेंट। और अगर Okay. ऐसे हम पूरा बेंड कर रहे हैं इसको सर्वाइकल को, दैट इज रिलेटेड विद द सर्वाइकल मूवमेंट। Okay. Okay. आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही, तो माइक थोड़ा पास करिए कहीं कुछ. ओके ओके सर, चलिए मैं डायरेक्टली लैपटॉप से बात कर रहा था। अच्छा. ओके. सर. ओके, Yeah. देन वर्टिब्रल आर्च, अभी वो सेम स्ट्रक्चर है, पेडिकल लैमिना वो उसी के सराउंड में आते हैं। देन लास्ट वन द आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, वो अलग अलग थोड़ी सी अलग होती है, सेम फंक्शन सेम है। सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टू वर्टिब्रल जॉइंट। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर बताई थी जो फोरामेन ट्रांसवर्स मैंने बताया, वहां पे वो वर्टिब्रल आर्टरीज पास होती है। दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरीज जो इनर साइड से पास होती है और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ ब्रेन में वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दिस इज जस्ट डिफरेंट पोर्शन रिलेटेड विद सर्वाइकल वर्टिब्रेज। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग है। अलग इन द सेंस हमने जब लैंडमार्क्स देखते थे बैक के, तब मैंने ये बताया था अगर हम नेक के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पोस्टीरियरली प्रोमिनेंट स्पाइन मिलेगी, दैट इज द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज। बाकी स्पाइन्स छोटी होती है पर यहाँ पे डिमार्क हम कर सकते हैं यहाँ तक सर्वाइकल वर्टिब्रेज आ रही है, so that portion is related with long spinous process of the 7 cervical vertebrae. It is also known as vertebral prominence because of the long spinous process at the tip of which can be felt the skin at the lower end. Neutral furrow वहाँ पे होता है, the spine is thick, long, nearly horizontal and not bifid। जैसे हमने बाकी जगह पे बेटा देखा है कि लिगामेंटम न्यूटी के लिए वहाँ पे बाइफिड स्पाइन थी, तो यहाँ से आगे सिंगल ये होता है, वहां पे सिर्फ एंड्स विद द ट्यूबरकल। तो ये इस तरीके से लास्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रास दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे भी फोरामेन ट्रांसफर सीरम है, यहाँ पे स्पाइन बाइफिड नहीं है, यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी दिखती है जैसे हमने रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हमने नहीं देखा, और यहाँ पे वर्टिब्रल फोरामेना भी दिखता है। इट जस्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस कंप्लीटली लार्ज इन साइज, पोस्टीरियर रूट ऑफ लार्जर देन द एंटीरियर रूट। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस वो अलग है, वो हमें याद रखना है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट लैंडमार्क है इन द बैक। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, सबसे पहला डिप्रेशन जहाँ पे लगेंगे दैट इज अबाउट द स्कल, उसके नीचे अगर स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे बोनी प्रोमिनेंस लगेंगे दैट इज अबाउट द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज also the different in shape than the other vertebrae। So ये कंबाइन लेग पिक्चर दिया था, दिस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, दिस इज द सेकंड वन, यहाँ पे डेंस लाइक स्ट्रक्चर आता है। दिस आर द कॉमनेस्ट, C3 टू C6 में ये कॉमन स्ट्रक्चर है, और ये लास्ट में अनकॉमन और एक वर्टिब्रे है दैट इज द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है। देन थोरैसिक वर्टिब्रे, बाकी वर्टिब्रे से इसमें क्या चेंज है, जैसे फर्स्ट
तो थोरेसिक वर्टिब्रेज में हमने जो ट्रांसवर्स फोरामेन देखा था वर्टिब्रल आर्टरी के लिए, वो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन बाकी किसी भी वर्टिब्रेज में रिब्स अटैच नहीं होती, यहाँ पे रिब्स अटैच होती है। तो रिब्स अटैच के लिए वहां पे बॉडी में दो जगह पे फैसेट होते हैं, एक अपर सेगमेंट में एक लोअर सेगमेंट में। यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे एक फैसेट है, बाकी जगह पे हमने आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस से देखे, सिर्फ आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस से देखे, तो ये यहाँ पे है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। ये एक के ऊपर एक आने के लिए है, और वो छोड़ के यहाँ पे बॉडी पे और एक आर्टिकुलेशन के लिए प्रोसेस होती है, दीज आर फॉर द रिब्स। तो ये बेसिकली एक के ऊपर एक जहाँ पे अटैच होती है बॉडी, दोनों जगह पे इसकी अटैचमेंट आती है, सुपीरियर कॉस्टल फेसेस एंड द इंफीरियर कॉस्टल फेसेस। इसलिए ईच रिब वो दो वर्टिब्रेज को अटैच होती है। दैट स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द डेमी फैसेट। मींस अगर हम एक करके देखेंगे तो फर्स्ट वन द thoracic vertebrae, it is identify the presence of costal face facet, तो यहाँ पे costa अटैच होती है, दैट इज द रिब्स ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। तो अलग सा जो है वहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेना था, यहाँ पे बॉडीज को अटैच होती है, दैट इज द वर्टिब्रल बॉडीज। देन आर द 12 thoracic vertebrae, out of which second to 8 are the typical and remaining 5 are the atypical. तो सेकंड से 8 तक are the commonest one. Then last, first and last are the different one. Commonest structure having the heart-shaped body, roughly same with measurement of side to side, anterior posterior जो dimension होता है वो same होता है। हार्ट शेप बॉडीज की होती है मोस्टली। हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं कि थोरैक्स में हार्ट रहता है, इसलिए उसकी बॉडी हार्ट शेप। जब लंबर में जाते हैं दैट रीजन हैविंग किडनी अप L1, तो उसकी जो बॉडी होती है वो किडनी शेप आती है, बीन शेप आती है। तो ये उसके बाद सुपीरियर कॉस्टल डेमी फैसेट और इंफीरियर कॉस्टल डेमी फैसेट अलग सी चीज है। यहाँ पे सिर्फ आर जस्ट अटैच विद द करस्पॉन्डिंग रिब्स। जो सुपीरियर होता है वो करस्पॉन्डिंग रिब्स से अटैच होता है, जो इंफीरियर होता है वो नेक्स्ट लोअर रिब से अटैच होता है। मींस हर रिब जो होती है दो बॉडी को अटैच होती है, दो वर्टिब्रेज को अटैच होती है। एक कुछ पोर्शन उसका अपर वर्टिब्रेज को जाता है, कुछ पोर्शन लोअर वर्टिब्रेज को जाता है। बेसिकली जो बॉडी के ऊपर का फैसेट है तो करस्पॉन्डिंग रिब को जाती है, और बॉडी का नीचे का फैसेट होता है वो नेक्स्ट रिब को जाता है। इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर होता है थोरेसिक रीज का, वो दो दो वर्टिब्रेज को अटैच हो रहा है, एंटीरियर सेगमेंट में, सॉरी पोस्टीरियर सेगमेंट में, और एंटीरियर सेगमेंट में आर अटैच विद द स्टर्नम। ओके, दिस इज द नॉर्मल पिक्चर। यहाँ पे सुपीरियर फैसेट है, आर द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट। देन यहाँ पे भी ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट है, मींस यहाँ पे रिब अटैच हुई, यहाँ से रिब पास होती है तो वो ट्रांसवर्स प्रोसेस को भी अटैच होती है। शायद इसका भी मैंने पिक्चर दिया हुआ, दिस इज द वन। ये रिब अटैच है, तो ये बेसिकली बॉडी को अटैच हुई, जब पास होती है कर्व्ड स्ट्रक्चर लेता है तो वो ट्रांसवर्स प्रोसेस को भी अटैच होती है। यहाँ पे भी वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वहां पे भी लिगामेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी फैसेट होती है। तो बेसिकली अटैच विद बॉडी विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस आल्सो। इसलिए बाकी ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी यहाँ पे फैसेट नहीं मिलता, बेसिकली यहाँ पे भी हमें फैसेट मिलता है। वर्टिब्रल आर्च जस्ट फॉर द डिस्क्रिप्शन, कैसे कैसे कहाँ पे होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, एंड द पेडिकल्स एंड लैमिनास। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कॉस्टल फैसेट, डेमी फैसेट, स्पाइनस प्रोसेस। लिप्स कैसे अटैच होती है वो। फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, जो अलग से मैंने बताया कि कौन कौन से अलग है। फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, the body of the vertebrae is resembled with the cervical vertebrae। अब cervical ही ऊपर है और cervical के साथ डायरेक्टली फ्यूज हो रहा है 7 cervical के साथ, तो थोड़ा सा रिजेंबल होता है cervical के साथ। सिर्फ जो अलग है, आप कोस्टल फैसेट होते हैं, cervical पे नहीं होते। सुपीरियर कोस्टल फैसेट बॉडी इज कंप्लीट। जैसे हमने बताया कि हर जगह पे डेमी फैसेट है, क्योंकि हर रिब दो वर्टिब्रेज को अटैच हो रही है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट थोरैसिक रिब। तो यहाँ पे जो अपर सेगमेंट होता है या अपर फैसेट होता है वो आधा नहीं होता, पूरा होता है। फर्स्ट रिब पूरी अटैच होती है टू द फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, इसलिए वो डेमी फैसेट नहीं होता।
Demifacet just are starting with the second rib. Then 9th, 10th, 11th or 12th, they are also having the different structure rather than the normal thoracic vertebrae. 9th में only upper costal demifacet होता है. 10th में have complete superior costal facet on each side. और ये स्ट्रक्चर है वर्टिबल केज का, कैसा नॉर्मली दिखता है अगर हमने उसका सेक्शन लिया तो. दिस इज द thoracic vertebrae. यहाँ पे रिब्स अटैच हो गई. दिस इज द ट्रांसवर्स फैसेट, रिब्स एंटीरियरली आया एंड दिस इज द स्टर्नम. तो इस तरीके से वो रिब केज दिखता है. 11th सिंगल लार्ज कॉस्टल फैसेट होता है. देन 12th thoracic vertebrae, लास्ट वाला जो है वो 12th है. स्पेलिंग मिस्टेक है. शेप ऑफ द बॉडी. अब लास्ट का जो होता है अगेन दे आर रिजेंबल मोस्टली, दे आर आर्टिकुलेटेड नंबर 1. तो यहाँ पे नंबर के जैसा थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए बेसिकली डिफरेंशिएट करना होता है. तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द डेमिफैसेट एंड द प्रोसेस हैविंग द फैसेट. यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस में फैसेट नहीं होता आर्टिकुलेटिंग, सिर्फ शेप ऑफ द बॉडी एंड पेडिकल ट्रांसवर्स प्रोसेस स्पाइंस सिमिलर टू दैट इज द लंबर वर्टिब्रेस. तो थोड़ा सा लंबर के साथ अटैच हो रहा है, इसलिए लंबर वर्टिब्रेस के तरीके से वो दिखता है. देन लंबर वर्टिब्रेस, there are 5 in numbers, which are the first 4 are the typical and the fifth one is the atypical. Lumbar vertebrae is identified by the large size and by the absence of the costal facet on the body. सबसे बड़े वर्टिब्रेस ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट द लंबर वर्टिब्रेस. सबसे बड़ी बॉडी होती है एज कंपेयर्ड विद अदर वर्टिब्रेस. इसलिए कभी अगर वर्टिब्रेस हमने हाथ में लिए तो अलग से पहचान में आते हैं. फिर भी कंफ्यूजन होता है, दैट इज विद द thoracic vertebrae. तो thoracic vertebrae में बॉडी हमने अगर देखी तो दे हैविंग फैसेट्स और द कॉस्टल अटैचमेंट, तो यहाँ पे वो नहीं होते. देन लार्जर इन साइज होते हैं, इसलिए वो आइडेंटिफाई होते हैं. बॉडी भी सबसे बड़ी बॉडी ही होती है. वर्टिबल फोरामेन ट्रायंगुलर इन शेप, लार्जर देन thoracic रीजन. thoracic से बड़ा होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि L1 से लेकर S3 तक जो ये होता है वहां से नोज थोड़े से ज्यादा निकलते हैं, तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड की भी डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है. पेडिकल्स आर short and the strong as compared with the others. The length of the transverse process increases from L1 to L3. Thereafter, it decreases. Superior articulating process is lie farther apart than the inferior one, and the inferior process lie nearer to each other. सिर्फ बॉडी में वो एक दूसरे के कैसे अटैच होते हैं उसी का ये डिस्क्रिप्शन है. Just go with the last one, that is the fifth number vertebrae. ट्रांसवर्स प्रोसेस थिक होता है, शॉर्ट होता है, पिरामिडली इन शेप होता है, स्पाइन छोटा होता है, बॉडी लार्ज होती है. जैसे सैक्रम को ऊपर इसको फिट बैठना है, सैक्रम के हिसाब से इसकी बॉडी होती है. और सब पूरे पांचों वर्टिब्रास में सबसे बड़ी बॉडी इसकी होती है, वो सैक्रम फिट बैठता है इसलिए. इन दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर नंबर वर्टिब्रेस. जैसे हमने टिपिकल स्ट्रक्चर देखी थी उसी के हिसाब से सिर्फ लैमिना जो है वो बड़ा होता है, पेडिकल जो छोटे होते हैं, क्योंकि बॉडी ही सबसे बड़ी है इसलिए. सैक्रम, इसको फास्ट रिवाइज करेंगे. एक बार हमने देखा है सेम वर्टिबल कॉलम का बोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिया. सैक्रम इज द लार्ज फ्लैटेंड ट्रायंगुलर बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रेस. 5 सैक्रल से वो फ्यूज होता है. इट फॉर्म्स द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोनी पेल्विस. पेल्विक कॉरिडोर होता है, उसका सुपीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन ये बढ़ाता है. आगे हिप बोन, लैटरली हिप बोन होता है, आगे प्यूबिक पार्ट होता है हिप बोन का, और पोस्टीरियरली दे आर जस्ट रिलेटेड विद द sacrum. Being triangular, then the upper part of the sacrum is the massive because it supports the body weight and transfers to hip bone. तो ये जो हम बैठते हैं, बैठने के बाद ये सपोर्ट करता है बॉडी वेट को, एंड इट जस्ट ट्रांसफर टू द ischium. ischial tuberosity होती है बोन की, वहां पे वो ट्रांसफर करता है. Being a triangular, the sacrum has base and the four surfaces, that is pelvic, dorsal and right and left. तो ये पिक्चर है सैक्रम की. This is the upper segment, this is the body, are the articular facet, this is the sacral canal. Sacral canal means पांचों वर्टिब्रेस एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो गए हैं, इसलिए जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो भी फ्यूज्ड हो जाता है और सिंगल कैनाल फॉर्म करता है. तो दैट फोरामेन का जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ सैक्रल कैनाल. उसके बाद दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस.
और यहाँ पे डॉर्सल सैक्रल फोरामिना होते हैं जहाँ से नर्व्स बाहर निकलते हैं। अब दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस अलग अलग होती है, इसलिए उसके बीच में से बाकी जगह पे नर्व्स निकल सकती है, लेकिन ये फ्यूज्ड है इसलिए उसकी भी अलग से ओपनिंग यहाँ पे दी है। लैटरली हमने ट्रांसवर्स प्रोसेस देखा और यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए selectively at the upper segment that is called as an ala of the sacrum. और यही पोर्शन जो है ala पोर्शन that is related with the forming the joint with the hip bone. तो जो सैक्रो ये अल्लाह सैक्रल जॉइंट जो होता है तो वो इसके बीच में होता है, इलियम टू द सैक्रम। तो ये बाकी डिस्क्रिप्शन है, ये हमने एक बार देखा है, सिर्फ बोन के हिसाब से वो मैंने यहाँ पे लिया था। सैक्रल प्रोमेंटरी क्या होती है वगैरह वगैरह। लंबो सैक्रल जॉइंट फॉर्म कर रहा है, सैक्रल प्रोमेंटरी होती है पीछे की ओर जो बॉडी होती है वो ऊपर के साइड में चली जाती है अप टू द 30 डिग्री। देन हर एक पोर्शन वही की वही है। वर्टिब्रल फोरामिना इज जस्ट बिहाइंड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ सैक्रल कैनाल। पेडिकल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डायरेक्टली फॉरवर्ड। लैमिना ऑब्लिकली होता है, स्पाइन्स दे आर स्पाइनस ट्यूबरकल क्योंकि वो फ्यूज्ड हो गए। देन सुपीरियर आर्टिकुलेटिव प्रोसेसेस अगेन दे आर फॉर्मिंग द वर्टिकुलर रो एट द डॉर्सल एस्पेक्ट। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हाईली मॉडिफाइड होती है, दे आर फॉर्मिंग एट द सेगमेंट अलाई अपेक्स बेस। Apex of the sacrum is formed by the inferior surface of the body of the sacral vertebrae. It bears an over facet articulation with the coccyx. जो नीचे का portion that is the apex, यहाँ पे sacral hiatus होता है और यहाँ पे वो coccyx के साथ fused होता है। This is the sacrum and this is the coccyx. Then अभी उसी के surfaces हमने जो बोले कि pelvic surface और dorsal surface। pelvic surface, this is the pelvic surface। अब यहाँ पे pelvic means ये इनर साइड का एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे ये रिजेस होती है, यहाँ पे वर्टिब्रल्स अटैच होती है, मींस एक फ्यूज्ड है पर वहाँ पे अभी भी वो इंप्रेशन छोड़ती है। तो दोनों दो वर्टिब्रल्स यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, हैविंग द ट्रांसवर्स रिजेस। और यहाँ पे इनर साइड में एंटीरियर सैक्रल फोरामेना होता है, सैक्रल प्रोमेंटरी भी एंटीरियर सेगमेंट में होती है। देन दिस इज द अपेक्स वन एंड द कॉक्सिक्स। डॉर्सल सरफेस पीछे के साइड में जो पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं और हर एक इसमें वर्टिकल फोरामेन्स वो फॉर्म करते हैं। में सबसे मीडियन प्लेन में हमने देखा कि सबसे मीडियन या सबसे मिडल में स्पाइनस प्रोसेस है, तो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द मीडियन सैक्रल क्रेस्ट। और सबसे नीचे सैक्रल हाइटस होते हैं। इसमें वहां पे क्लियरली लिखा है कि ये जो है दैट इज द सैक्रम ट्यूबरस और ये सबसे मिडल में एक लाइन फॉर्म करे और नीचे में वो डेफिसिट होते हैं और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सैक्रल हाइटस। Then lateral to that they having the median crest used by the lamini. Lateral to the lamini having the four articulate tubercle. Then lateral to the articulate tubercle sacral foramina and lateral to the sacral foramina having the transverse tubercle. Means एक बाद एक जो structure normally present होता है they are just having the different name क्योंकि उनका fusion हुआ है। This is the structure median sacral crest by the spine. Then this is the lamina, intermediate sacral crest, the foramen, this is the transverse tubercle. Posteriorly वो कुछ इस तरीके से दिखता है। This is another original diagram. Lateral surface वो सिर्फ फ्यूज करने के लिए होता है। This is the lateral surface, वो फ्यूज होता है with the ilium. Sacral canal वो अभी मैंने बताया कि vertebral foramina जो होता है वो effectively यहाँ पे होता है। That structure is called as a sacral canal that is present in the sacrum. Then the attachment ये हमने पूरे डिस्कस किए हैं, जिसको इलियाकस, पाइरिफॉर्मिस, कॉक्सिक्स, सेक्स डिफरेंस ये भी कोई चीज नहीं। देन कॉक्सिक्स वेस्टिजियल है, स्मॉल ट्रायंगुलर बोन फॉर्म कर रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ रुडिमेंटरी कॉक्सिकल वर्टिब्रेज व्हिच आर प्रोग्रेसिवली डिमिनिश इन साइज फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। मीन आगे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक वो साइज में डिमिनिश होते हैं। बहुत बार हमने ये देखा होगा अगर हम जोर से गिर गए या कभी कुछ लग गया तो एट द एंड मीन जहाँ पे नेटवर्क फोल्ड है उसके ऊपर बहुत बड़ा पेन होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है इसका दिल का। बेसिकली कार्टिलेज होता है, अगर बहुत बड़ा बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो ये बोन भी हमें आजकल नहीं मिलता। ये दिन ब दिन वैसे भी छोटा होता जा रहा है। इसके coccygeal pieces they are the largest one,
जैसे हमें मिलता है, और बहुत सी चीजें यहाँ पे रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री ट्रांसवर्स फोर्सेस प्रोजेक्टिंग द लैटरल वन, ट्रांसवर्स फोर्सेस भी हमें सेकंड थर्ड फोर्थ को नहीं मिलती। सेकंड स्पीयर्स बाय द having the process and the ये पेडिकल्स होते हैं। तो ये छोटा सा ही बोन है, बहुत बार सिर्फ pelvic girdle में इनर साइड में आता है और वर्टिब्रल कॉलम में अभी भी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको incorporate किया है। Then attachment, they are just related with the gluteus maximus sphincter and external one. Just go for the muscle of the back, ये हमने देखा है। Just going for the fast, the number of the muscles, first one trapezius, then latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboides major, rhomboides minor। trapezius सबसे बड़ी मसल है। जब हम बैक में जाते हैं, जब हमने स्किन सेपरेट की तो सबसे बड़ी मसल हमें trapezius दिखी। दिस इज trapezius। ठीक है, जब हमने स्किन कट की, ये trapezius है। अब यहाँ पे हमें देखेंगे दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे trapezius अटैच होती है। दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, आगे की ओर वो क्लैविकल तक जाती है। देन लेवेटर स्कैपुली, जब हमने स्कैपुला देखा है तो स्कैपुला के मिडिल बॉर्डर में ये मसल होती है सबसे ऊपर, लेवेटर स्कैपुली, स्कैपुला को एलिवेट करने का काम करती है। देन रोम्बाइडस माइनर, रोम्बाइडस मेजर वो नीचे की तरफ होती है, दैट इज द मिडिल वन, मिडिल बॉर्डर है। स्पाइन के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। ये लेवेटर स्कैपुली, देन रोम्बाइडस माइनर, रोम्बाइडस मेजर। ओके, तो ये सबसे पहली टेरेस मेजर, उसको कट करने के बाद हमें ये तीन मसल्स मिलते हैं। उनको कट करने के बाद लैटिसिमस डॉर्सी छूट गई थी। पीछे की और नीचे के साइड में और मसल है, दैट इज द लैटिसिमस डॉर्सी। तो बैक में ये कंप्लीट मसल हमें फर्स्ट ग्रुप में दिखती है, दैट इज they are the four muscle trapezius, levator scapulae, rhomboides minor, rhomboides major at the upper segment, and in the lower segment single muscle that is latissimus dorsi। इसको कट करने के बाद हमें एक कॉमन मसल मिलती है, दैट इज this one, serratus posterior superior, serratus posterior inferior, serratus posterior anterior, serratus anterior हमने मसल देखी है anterior में। यहाँ पे एक डिजिटेशन उसके होते हैं, सेम मसल्स पीछे की ओर होती है। जब एंटीरियर साइड ट्रेपेजियस हमने कट कर ली, फिर रोम्बाइडस मेजर माइनर हमने कट की, फिर नीचे हमें ये मसल्स दिखेंगे, दैट इज serratus posterior superior, latissimus dorsi कट करने के बाद हमें serratus posterior inferior दिखते हैं। और ये सब कट करने के बाद डीप मसल्स ऑफ बैक ये है जो डायरेक्टली अटैच होती है विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगेन तीन लेयर है, सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, डीप लेयर एंड डीपेस्ट लेयर। बेसिकली ये हमने डिस्कशन पहले ही डिटेल में लिया है, तो सिर्फ जस्ट गो वन बाय वन। सुपरफिशियल लेयर हैविंग स्प्लेनियस, it is divided into two segments, that is splenius capitis and splenius cervix। capitis it is related with the skull, splenius cervix that is related with the cervical region। then intermediate superficial के बाद जो बीच में आते हैं are the erector spinae muscle, collectively called as erector spinae muscles, and it is again divided into two segments, that is iliocostalis, longissimus and spinalis। इन हिस्सों में इसको डिवाइड किया। and the last one, the deep one, that is the transverse spinalis। ये भी तीन इसमें डिवाइड हुआ, सेमी spinalis, multi spinalis and rotalis। so just go with the figures। spinalis capitis स्कल को अटैच हुआ है, सर्वाइकल रीजन में है। spinalis cervix सुपरफिशियल लेयर में आती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे तक हो जाती है। सेमी spinalis thoracic ये वही स्पाइनल से निकलते हैं, thoracic ribs तक जाती है। सुपरफिशियल में देखेंगे सेगमेंट में। देन इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिसिमस, स्पाइनलिस। तो यहाँ पे इलियोकोस्टालिस तो ये हमने देखा था, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एन इरेक्टर स्पाइनी। सबसे पहले स्पाइनलिस, देन मिडल में लॉन्गिसिमस, देन लैटरली दे आर द इलियोकोस्टालिस। और इनके रीजन के हिसाब से तीन अलग-अलग सेगमेंट्स है, इन अलग-अलग सेगमेंट आते हैं, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिसिमस, स्पाइनलिस एंड इरेक्टर सेगमेंट। दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद लंबर, देन or they are just starting with the sacrum and just having fibers to the lumbar, fibers to the thorax and fibers to the sacrum। तो इन अलग-अलग डिपार्टमेंट की मसल्स है, अटैच सभी स्पाइनस प्रोसेस को होती है। इसलिए जब हम कोई भी आसन करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया, लैटरल रोटेशन, मिडियल या लैटरल रोटेशन हो गया,
ये सभी मसल वहां पे इन्वॉल्व होती है, बैक के भी और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के भी। दे आर द मसल्स ऑफ द बैक। ज्यादा डीप में हम इसके जाएंगे नहीं। अगेन हैविंग द same structure, spinal is just lateral to the spinous process, then after to lateral that longest muscle, after that having iliocostalis. Movements, just go one by one, the movements of the vertebral column: flexion, extension, rotation, and the rotation in two ways, that's lateral rotation. These movements occurs again, they are just related with the planes, that is sagittal plane, coronal plane, and the horizontal plane. Just go one by one. फ्लेक्शन, जब हम आगे के फॉरवर्ड बेंडिंग की जो भी आसन करते हैं तो दैट इज द फ्लेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जब हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देन लैटरल फ्लेक्शन, जो कुछ आसन हम लैटरल फ्लेक्शन यानी कंधे झुका के अगर हम नीचे के फ्लोर को वक्त हम टच करेंगे, मींस मोस्टली दैट इज कोणासन। त्रिकोणासन में जब हम ये मोशन करते हैं तो दैट इज द लैटरल फ्लेक्शन। दोनों साइड में ये हो सकती है। रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज रिलेटेड विद द अर्ध मत्स्येंद्रासन वगैरह जो हम आसन करते हैं, दैट इज मूवमेंट इज रिलेटेड विद द रोटेशन। तो बेसिकली यही चार आसन होते हैं, द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। ये कंप्लीट मूवमेंट है। जैसे हमने बाकी जगह पे मूवमेंट्स देखी है कि दो एंगल में हुए, क्योंकि वो दो basically that joints is placed in between the two bones or between the three bones, पर यहाँ पे complete joint form होता है for the 24 vertebrae along with one sacral vertebrae, क्योंकि lumbar ये attach होता है sacrum को। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट भी लंबो सैक्रल भी मूवमेंट यहाँ पे हमें मिलती है। तो ये पूरे मूवमेंट एक जॉइंट नहीं है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम की है। दिस इज द गुड स्टैंड पोस्चर। हमने खड़ा कैसे होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों को आदत होती है कि पीठ को या सिर को झुका के चले, तो नॉर्मली इरेक्ट खड़ा रह के चलना है या खड़ा रहना है। तो जो नॉर्मल कर्व रहता है वर्टिब्रल कॉलम को, वो नॉर्मल ही वैसे वैसे दिखता है। बहुत लोगों को ये भी आदत होती है पेट बाहर निकल के चलते हैं, तो ये भी रॉन्ग पोजीशन है। ऐसे कंडीशन में लंबर कर्व है वो इन्वर्ट चला जाता है। अगर हम बहुत लोगों को ऐसे आदत होती है कंधे झुका के चलने की, ऐसे कंडीशन में हेड फॉरवर्ड मूवमेंट में चला जाता है, सेंटर एक्सिस चेंज होता है। सेम बैठने की भी पोजीशन बहुत लोगों को आदत होती है हम बाहर निकल के बैठने की, ऐसे कंडीशन में भी सर्वाइकल ये बाहर की ओर चला जाता है। बहुत लोगों को आदत होती है एकदम स्ट्रेट बैठना है, तो ऐसे कंडीशन में लंबर के आगे की ओर चला जाता है। नॉर्मल ही बैठना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में, न्यूट्रल पेल्विक पोजीशन में। बाकी अगर पोजीशन में रहे बेसिकली अगर पोजीशन में रहे तो मसल फटीग नहीं होती, उसको एडिशनल सपोर्ट देना नहीं पड़ता, और वो कर्व भी वर्टिब्रल कॉलम का नॉर्मल रहता है। अगर ये कोई भी पोजीशन नॉर्मल भी हम चेंज करेंगे तो भी पेन होता है। मेरे पास एक पेशेंट था बीच में, उनको वो जब चलते थे तो थोड़ा सा झुक के चलते थे, उनके पेन ये हिप जॉइंट में बहुत पेन होता था। उनको सिर्फ मैंने पोस्चर ठीक करने को बोला, वो खड़े भी रहते थे। तो उनको बहुत से लोगों को ऐसे आदत होती है अगर सिर्फ खड़े रहे तो एक पैर पे खड़े रहते हैं, दूसरे पैर पे खड़े नहीं, दूसरा पैर सिर्फ सपोर्ट के लिए रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी अननेसेसरीली जो मसल होती है एक साइड की, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, एक के ऊपर कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो भी वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा ये करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो खड़े रहते हो दोनों पैर पे समान वेट रखना है। देन आर द मसल्स, कौन सी मसल्स कौन से मूवमेंट में आती है। तो फ्लेक्शन, अब फ्लेक्शन हम आगे की ओर मूव हो रहे हैं, तो इसमें अलोंग विद द वर्टिब्रल मसल्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की भी मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो ये नंबर ऑफ मसल्स है, कहाँ से निकलती है कहाँ पे जाती है, तो ये हमने दिया है। एक्सटेंशन आर रिलेटेड विद द रेक्टस स्पाइनस सेमी spinalis, quadratum lumborum, internal oblique, rectus abdominis. Then rotation to the same side, internal oblique and the rectus abdominis। अब ये मसल rectus abdominis abdomen की मसल है जो बीच में प्रेजेंट होती है। internal oblique, external oblique, ये भी abdomen की मसल है। इरेक्टस स्पाइन अभी हमने देखा कि पोस्टीरियर कंपोनेंट की मसल है। बेसिकली जब हम मूवमेंट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम का, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बैक मसल्स,
बट उसी के साथ जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की भी मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, इसलिए वहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल्स आएंगे एंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एब्डोमिनल वॉल। आगे चल के जब हम कुछ आसन करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के, तो उनका भी प्रेशर ये थाई के मसल्स पे भी जाता है, क्योंकि जो ओरिजिन या इंसर्शन होते हैं रिलेटेड हिप बोन्स, थाई के मसल्स होते हैं। और जब हम आगे की ओर चलते हैं या पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, जैसे एब्डोमेन मसल्स पे 3 इंपॉर्टेंट मसल्स है, एक्सटेंशनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ये भी तीनों मसल्स हिप बोन को अटैच है। बैकवर्ड जाएंगे तो जो नीचे के लंबर फाइबर्स होते हैं तीनों के, स्पाइनलिस, इलियोकोस्टिलिस और लॉन्गिस के, वो along with the sacrum they having some fibers towards the hip bone also। तो यहाँ पे भी जब हम आसन करते हैं बाकी के मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। These are the मसल्स। ये यहाँ पे मैंने लिंक दी है, होने के बाद मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। बेसिकली हमने अभी तक गोनियोमेट्री देखे, आर जस्ट मेजरिंग विद गोनियोमीटर। पर जब हम मूवमेंट्स बैक के देखते हैं तो हैविंग द 3 डिफरेंट वेज टू काउंट द मूवमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। मींस लंबर मूवमेंट हमें देखना है, सर्वाइकल मूवमेंट हमें देखना है। तो अलोंग विद द गोनियोमेट्री हम सिर्फ मेजरिंग टेप लगा के देखते हैं। मींस अगर सिर्फ मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूँ तो मुझे टेप कहाँ पे रखनी है, तो बेसिकली जो डिंपल होता है S2 लेवल पे नीचे, सैक्रल 2 लेवल पे, वहां पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, वहां से 12 सेंटीमीटर ऊपर तक पॉइंट ले लो, वहां से एक लेंथ मेजर करो स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर उनको फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करने को बोलो और फिर से वो लेंथ काउंट करो। जब हम झुकेंगे फ्लेक्शन में जाएंगे तो वो जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्स होते हैं, वो लेंथ बढ़ती है। मींस सिंपल मेजरिंग टिप से भी हम ये काउंट कर सकते हैं। अगेन सिर्फ जो सर्वाइकल और लंबर के अगर हमें रोटेशन देखी तो हम गोनियोमीटर से भी काउंट। तो मॉडिफाइड ये भी उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे बड़ा आर्टिकल है एक्चुअली, वो नेट का है, इसलिए वो पूरा आर्टिकल हमें इस लिंक पे मिल जाएगा। देन जस्ट गो विद द नॉर्मल गोनियोमेट्री। हम कौन सा एंगल कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बेसिकली 3 को सीधा रख के एक्सटर्नल एकोस्टिक मेटस है, वहाँ पे फल्क्रम को रखना है। फल्क्रम को यहाँ पे रख के एक नोस्ट्रिल के साथ जो मूविंग आर्म है वो नोस्ट्रिल के साथ और एक वर्टिकल पोजीशन में काम को रखना है। फिर हमें मुंह फ्लेक्स करना है, और फ्लेक्स करने के बाद जब हम ये नोस्ट्रिल्स नीचे चले जाएंगे, आगे की तरफ होगा तो उसको नीचे कीजिए, तो ये एंगल जो होगा दैट इज रिलेटेड विद द एंगल ऑफ फ्लेक्शन। पीछे की ओर गएंगे नॉस्ट्रिल्स, अगेन सिर्फ नॉस्ट्रिल्स को हमें कंपेयर करना है। ये वर्टिकल, ये जो है ये स्टेशनरी आर्म है, दिस इज द मूविंग आर्म। तो दिस इज द सर्वाइकल बैकवर्ड बेंडिंग। देन सर्वाइकल साइडवाइज बेंडिंग। तो यहाँ पे हम 7 सर्वाइकल प्रोसेस के वक्त वहाँ पे फल्क्रम रखते हैं। देन जो स्टेशनरी आर्म है वो स्पाइनस प्रोसेस की तरफ, स्पाइन की तरफ ये करते हैं, मूविंग आर्म जस्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द हेड ऑफ द ऑसिपिटल। और जब मूवमेंट करेंगे तो जो स्टेशन ये मूविंग आर्म है उसको चेंज करके उसका हम एंगल काउंट करते हैं। दिस इज द साइडवर्ड बेंडिंग। ये फॉरवर्ड बेंडिंग जो हमने अभी बताया। देन सेम विद द थोरेसिक लंबर। यहाँ पे जो एक्सिस होता है, जो फल्क्रम होता है वो S1 के पास हम रखते हैं। स्टेशनरी आर्म वर्टिकल रहता है, मूविंग आर्म टुवर्ड्स द C7 स्पाइनस प्रोसेस में वर्टिबल कॉलम की तरफ होता है, और सिर्फ हम मूवमेंट देखते हैं कि किस एंगल तक हम नॉर्मली मूव हो पाते हैं। तो दिस इज लंबर सेगमेंट। ये जो मैंने मेजरिंग टिप से बताया था, दिस इज द सेम पिक्चर आई हैव जस्ट टेकन ओवर हियर। ये सिंगल वर्टिकल स्टैंडिंग पोजीशन में हम काउंट कर सकते हैं S1 से लेके C7 तक, और फिर फ्लेक्स करने के लिए बोलिए, जो लेंथ काउंट होंगी वो लेंथ हम मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ मोशन एब्सोल्युटली 4 इंचेस की होती है। यहाँ पे अगर नॉर्मली हम आसन अच्छे से करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग हमें दिख रहा है, ये इसके फिंगर फ्लोर को टच भी नहीं हो रहे, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब हम आसनास करते हैं तो ये भी फ्लेक्शन की लेंथ यहाँ पे कम ज्यादा होती है। देन दिस इज अबाउट द मोशन एंड वोल्यूमेट्री। वो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में है। आसनास मैंने सिर्फ लिए है जो मोस्टली बैक पेन में यूज करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में सिर्फ फोकस करेंगे आसनास पे और रिसर्चेस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम पे हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिसर्चेस हुए हैं, नंबर ऑफ आसनास है, तो उसको हम कलेक्टिवली एक ही लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ आसन दिए हैं कि जो मोस्टली हम यूज करते हैं। जस्ट गो फर्स्ट वन, दैट इज शलभासन। अब यहाँ पे अगेन मैंने ग्रुपिंग नहीं किया, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग का। नेक्स्ट इस पे वो ग्रुपिंग हम एक डिस्कस करेंगे या फिर आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे। देन दिस इज द शलभासन। अब यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। अगेन ऊर्ध्वमुख शवासन, this is just related with extension of the vertebral column. Adhomukh Shavasana, this is forward bending, the flexion of the vertebral column. Then bow pose, that is Dhanurasana, this is extension of the vertebral column. Then next one, back bend, this is the extension. Urdhvamukh Dhanurasana, again extension of the vertebral column. अब again बाकी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती ही है मसल्स। कोनासन लैटरल बेंडिंग जो आसन है, अगेन यहाँ पे लैटरल बेंडिंग के बाद हिप बोन के ऊपर प्रेशर एक्सटेंशन में जाता है लैटरल बेंडिंग में। तो लैटरल साइड के जो मसल्स है वो एक्सटेंशन में जाते हैं, इनर साइड के फ्लेक्शन में जाते हैं। देन कोनासन फॉरवर्ड बेंडिंग में है, फ्लेक्शन करता है वर्टिबल कॉलम का, और हैमस्ट्रिंग मसल्स है जो पीछे के मसल्स है उसका वो एक्सटेंशन करता है। तो ये भी बहुत बार हम यूज करते हैं, दैट इज कोनासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये भी लैटरल मूवमेंट में आएगा वर्टिबल कॉलम के लैटरल मूवमेंट में। सो दिस इज आल्सो द आसनास इन्वॉल्वड इन द वर्टिबल कॉलम। भुजंगासन, कंप्लीट पोजीशन जो है भुजंगासन की एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिबल कॉलम में आती है। स्पाइनिक्स पोज, सिर्फ जो मूवमेंट है भुजंगासन से हम नॉर्मल आते हुए, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में आते हैं, सपोर्ट्स टू द एल्बो। ब्रिज पोजीशन, सेतुबंध सर्वांगासन, एक्सटेंशन में है, सर्वाइकल रीजन हुआ है सिर्फ, बाकी जगह एक्सटेंशन में है। अपवर्ड फ्लैंक पोजीशन, हलासन, सर्वाइकल ये जो है फ्लेक्शन में आता है, लंबर रीजन एक्सटेंशन में आता है। त्रिकोणासन लैटरल मूवमेंट में है वर्टिबल कॉलम के। विकोणासन, दोनों त्रिकोणासन विकोणासन वृक्षासन ताड़ासन भी इन्होंने एक्सटेंशन में दिए हैं, कुछ जगह वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए। अर्ध मत्स्येंद्रासन लैटरल मूवमेंट में है वर्टिबल कॉलम के। सिर्फ सिंपली ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है ये। जो हम रिलैक्सेशन की भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वर्टिबल कॉलम की ये ट्विस्टिंग मूवमेंट हम करते हैं। लैटरल मूवमेंट है, एक जगह पे ट्विस्टिंग, ये दूसरी पोजीशन है ट्विस्टिंग मूवमेंट में। ये भी हम सिर्फ जनरल रिलैक्सेशन के लिए भी कर सकते हैं। So this is the all asanas. We are just mostly doing these asanas. बहुत बार हमने आसन रिपीट किए, इतने नंबर ऑफ आसन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फोकस हम आसनास पे करेंगे रिलेटेड विद रिसर्चेस जो वर्टिबल कॉलम के डिसीजेस हुए हैं। पंद्रह मिनट है हमारे पास, अगर हम कुछ डिस्कस कर पाए, क्योंकि एक्चुअली ये भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा 110 111 वगैरह स्लाइड्स हो गई थी, तो अगर और मैं रिसर्च इसमें लेता तो और थोड़ा सा दौड़ना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट आर्टिकल, सेपरेट लेक्चर 1 घंटे का, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस है जो हम डिस्कस कर सकते लगे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या रिसर्चेस किए, उनका आउटपुट क्या था, रेगुलर फॉर्म में हर एक को डिस्कस कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट सेशन माइट भी हम डिस्कशन जैसा ही लेंगे कि ये आसन से ये उन्होंने रिसर्च किया, उनको आउटपुट ये आए ये नहीं आए, तो वो कंप्लीट हम डिस्कशन के साथ कभी के कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुछ हुआ है रिसर्चेस तो वर्टिबल मूवमेंट्स पे ही सबसे ज्यादा हुए हैं। इस बैक पेन हो गया, जितने भी योगासन हमने देखे वो आर जस्ट रिलेटेड विद मूवमेंट्स ऑफ द बैक ओनली। मुझे लगता है कि एक लेक्चर शायद हो पाएगा, अभी तक मैंने पूरे देखे नहीं क्योंकि बहुत सारे दिख रहे थे, इसलिए फिर सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाने से अच्छा एक सेपरेट अगर हो गया
तो वो और अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, बिकॉज बैक जो है, जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज सेंट्रल टू द होल परफॉर्मेंस ऑफ आसनास। सबसे इम्पोर्टेंट तो सारे आसन आर ऑर्गेनाइज अराउंड द स्पाइन ओनली। तो बहुत बढ़िया आपने डिसीजन लिया ये, और आज भी बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो वैसे डॉक्टर साहब में जो बैक पेन होता है, अच्छा बैक में एक तो अराउंड द स्पाइनल कॉलम होता है, लंबर में भी होता है, बीच में भी होता है, नेक में भी, ये तो सब वेल नोन है। बाकी जो मसल्स में कुछ कुछ कई बार मूवमेंट्स के दौरान पेन होता है, जैसे कि मोबिलिटी इतनी नहीं होती, जैसे आप अगर ट्विस्ट कर रहे हैं सपोज या फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो राइट साइड है उसके अंदर जैसे हल्का सा बेंड करने में हल्का सा दर्द होता है। तो ये मस्कुलर होती हैं या ये स्केलेटल होता है यूजुअली, या पोस्चरल होता है? स्केलेटल पेन तो नहीं रहता सर, बोन्स मोस्टली पेन नहीं करते। मस्कुलर पेन हो सकता है या पेन ड्यू टू नर्व्स भी हो सकता है। पर नर्व्स अगर हम सिर्फ मूवमेंट कर रही है, नर्व्स से भी पेन नहीं होता, क्योंकि अगर नर्व से रिलेटेड पेन रहा तो बाकी भी थोड़े से सिम्टम्स हमें दिख सकते हो। आप बर्निंग दिख सकता है, नहीं तो टिंगलिंग सेंसेशन हमें दिख सकता है। अगर ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है, मोस्टली दे आर रिलेटेड विद मस्कुलर पेन, क्योंकि उतनी आदत नहीं होती हमें स्ट्रेच करने की और एकदम से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी थोड़ा सा पेन हो सकता है। नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल कंडीशन नहीं रही, नॉर्मली हम बैठते नहीं, तो एकदम से हम नॉर्मल कंडीशन में बैठने भी लगे तो भी पेन होता है, क्योंकि बॉडी को उसका आदत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस हो रही है बॉडी, इसलिए वो पेन देता है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह जो रहता है, ये ठंडी में ये बहुत बार होता है कि थोड़ा सा अगर लेट अगर हम उठ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब उठ के बैठते हैं तो थोड़ा सा जो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, उस कारण पेन ये होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बहुत बार हमने सवेरे उठ के एकदम से विदाउट, जैसे लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसको छोड़ के अगर हमने डायरेक्टली आसनास परफॉर्म करना स्टार्ट किए, तो वो भी हम भले ही रोज कर रहे हैं, फिर भी वो भी पेनफुल थोड़ा सा स्टार्टिंग में देते हैं, क्योंकि वो एकदम रेस्ट पोजीशन में थे और एकदम से वो एक्टिंग हो गए। तो थोड़े से स्ट्रेचिंग ये जो होता है, तो वो भी अगर हम कर रहे हैं, हाँ, अगर वो कंटिन्यू पेन हो रहा है, अगर आप वो मूवमेंट हमेशा कर रहे हैं लेकिन हमेशा ये हो रहा है, तो दैट माइट बी नॉट ओनली विद मस्कुलर वन, कुछ अलग सा भी वहाँ पे हो सकता है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं बाकी के लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि यहाँ पे बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, जो क्लिनिकल एनाटॉमीज होती है वर्टिब्रस कॉलम की, तो नेक्स्ट टाइम वो भी करेंगे। उसके साथ हम आसना ये भी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यानी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जो हम डे टू डे में देखते हैं। स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोलिथेसिस वगैरह जो है, तो वो टर्म भी हम एक्सप्लेन देखेंगे कि क्या अलग होता है उनमें, ताकि हमें ये भी पता चले कि क्या क्या हो सकता है। कि अगर कंटिन्यू वहाँ पे मस्कुलर पेन है, तो बेसिकली अगर मस्कुलर पेन है तो आप सिंपल वहाँ पे अभ्यंग कीजिए, स्वेदन कीजिए, तो ये मस्कुलर पेन जैसे वो रिलैक्स होगा तो वो कम हो जाएगा। अगर वो वहां से कम हो रहा है तो इसका मतलब वो मस्कुलर नहीं है। फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो दैट माइट बी विद अदर स्ट्रक्चर आल्सो, मींस जो हमने बोले कि फाइबर्स अटैच है। तो अगर कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत ज्यादा एक्सटेंशन या बहुत ज्यादा फ्लेक्शन किया होगा, तो एक आध फाइबर भी ऐसा हो सकता है कि रप्चर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। अगर कंटिन्यू है तो उसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं। अगर एक आध बार हो रहा है, एक आध बार झुकने पे हो रहा है, तो 100% दैट ड्यू टू द ओवर स्ट्रेच, उसको आदत नहीं रही, एक आध दिन उसको ओवर स्ट्रेच हो गया, तो उससे भी हो सकता है। सिंपल अभ्यंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली जब आयुर्वेदा में अभ्यंग आता है, तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट है कि हमें हम जब कभी अभ्यंग को जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि जोर से प्रेस करो, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। बेसिकली जब आयुर्वेद में अभ्यंग बोला गया है, तो उन्होंने इतना बोला है कि सिर्फ हमें उनको तेल लगाना है और थोड़ा सा प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत बार हम जब पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो सर जोर से दबाओ, क्योंकि वो पेशेंट को अच्छा लगता है। बट ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अभ्यंग जब हम कर रहे हैं, सिर्फ उसको हमारा एम है कि हम उसको ऑयलेशन कर रहे हैं, उसको हमें एकदम से बहुत प्रेशराइज नहीं करना है। तो ऐसा भी सिंपल अभ्यंग कीजिए, सर्वांग अपना नहाते वक्त भी आप गर्म पानी से नहा लोगे तो वो स्वेदन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल ये आ सकता है।
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने वही किया, जैसे अभ्यंग पिछले कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कम होए जा रहा है। तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ होगा सर एक बार, इसलिए वो हुआ होगा, नहीं तो सिर्फ अभ्यंग से वो कम नहीं होता। अब अभ्यंग से बेसिकली हमारे इसमें सर ने लिया होगा वो श्रम जराहाराणाम बोला है कि अगर वहां पे श्रम हुआ है तो वो कम करने के लिए काम में आता है। तो श्रम इन द सेंस वो एक्स्ट्रा वर्क हुआ, एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ, एक्स्ट्रा फ्लेक्स हुआ, तो उसके लिए वो श्रम हो गया, उसने वो ज्यादा काम कर लिया, तो उसको वो कम करेगा अभ्यंग, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये जब वैसे सपोज मसल में जब पेन होता है, तो ये क्या वायु जो मसल फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, इस वजह से होता है क्या पेन? सॉरी सर। मैंने कहा जब मसल्स में जब पेन होता है, इनएक्टिव मसल्स है मान लीजिए, जब पेन होता है, जो कि धीरे धीरे मैंने कहा कम होता जाता है, बट इसका रूट कॉज क्या, मतलब वायु जो है पेनिट्रेट कर जाती है मसल के अंदर, तो इस वजह से वो दर्द करती है? बेसिकली आयुर्वेद में कोई भी पेन कहीं पे भी हुआ तो वात के कारण ही होता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। जी कोई भी पेन रहे, जी। तो ये मॉडर्न का कंसेप्ट जो क्रैम्प्स के होते हैं वो अलग है, आयुर्वेद का कंसेप्ट अलग है। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट हम वात से चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि अभ्यंग कीजिए, क्योंकि अभ्यंग से हर कोई वात कम होता है। तो जहाँ पे पेन है आयुर्वेद में वो वात के कारण ही अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये यूनिवर्सली ट्रू है, मतलब हाँ, कहीं पे भी पेन मतलब बेसिकली वायु का ही सिम्टम है, वो हर चरक तरह का भी पेन। नास्ति वातत दया रुजा करके चरक का एक स्टेटमेंट है, मुझे वो पूरा श्लोक नहीं याद आ रहा कि वायु वात नहीं है तो पेन, वात के दो तीन कंडीशन है, जैसे पेन होगा तो वात होगा, घाव होगा तो के कारण होगा। तो ये जो दो अच्छा तीन कंडीशन वहां पे दिए हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ पेन नहीं हो सकता, पर पेन है तो उसके साथ वात है ही, दूसरा हाँ, भी एक आध दोष होगा, पर एक दोष वात उसके साथ होता ही है। अच्छा ठीक है। और वैसे बैक को हेल्दी रखने के लिए योगासन और अभ्यंग के अलावा और कोई चीज रिकमेंडेड होती है क्या? मोस्टली हम तो अभ्यंग ही बोलते हैं, नहीं तो मैं जैसे अभी पेशेंट के बारे में मैंने बोला था कि मैंने उनको 2 1.5 2 महीना ट्रीटमेंट की, को रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ परसेंट में रिलीफ मिलता है, तो मैंने उसको उनको सिर्फ बोला कि आप मुझे खड़े होकर बताइए। हाँ, तो मिनट मैंने देखा उनकी तरफ, 2 मिनट को खड़ा रहने को बोला, तो वो पहले तो दोनों पैर पे खड़े थे, जैसे आदत रहती थी एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर ने वो पूरा खड़े 2 ही पैर पे थे, पूरा वेट एक पैर पे था, तो वो एडिशनल प्रेशर जो होता है वो भी होता है। तो ये भी हम नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं कि हम वर्टिबल का जो कर्वेचर है वो अगर नॉर्मल रहने की कोशिश करें तो वो भी पेन थोड़ा-सा ये हो सकता है, तो वो भी हम कोशिश कर सकते हैं। ये तो जब हम बचपन से सुन रहे हैं कि सीधा बैठो, सीधा खड़े रहो, ये तो नॉर्मली बचपन से सुनते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं होता, और अभी के कंडीशन में तो 100% नहीं होता। जैसे हम लैपटॉप पे कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है ये सर्वाइकल मूवमेंट, ये थोड़ी-सी फॉरवर्ड बेंडिंग में ही आती है। और या घर पे अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि जैसे आइस लैपटॉप में आराम से सो के ये करो। ऐसे कंडीशन में जो लंबर मूवमेंट है वो भी पीछे की तरफ चली जाती है। तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। यानी हम जब आजकल जो ऑफिस में जाते हैं तो उनको ऑफिस जो सिटिंग पोस्चर में रहते हैं ऑफिस में, ऑफिस वर्क, उनको हम बोलते हैं कि आप बैठे हो तो एटलीस्ट पीछे के साइड में एक कट्टा लेके बैठो, यानी वर्टिबल कॉलम सीधा रहता है, नीचे भी एक तकिया लेके बैठो और पीछे भी लेके बैठो। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया था, वो स्ट्रेट है। यहाँ पे जी इस पोजीशन में ये गैप आती है बीच में, तो यहाँ पे अगर सिंपल सीधा बैठना है तो हम यहाँ पे तकिया लेके बैठ सकते हैं, यानी वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। मतलब जो नेचुरल कर्वेचर है स्पाइन का, उसको मेंटेन करना है अपने को। हाँ, और बहुत बार अगर आप ये देखोगे, यानी जो अलाइनमेंट है जैसे यहाँ पे दिखाया है, दिस इज द नॉर्मल अलाइनमेंट। आधी बॉडी एंटीरियरली होती है, आधी बॉडी पोस्टीरियरली होती है, लेकिन अगर ये अलाइनमेंट चेंज हो गया तो यहाँ पे जो ये है सेंट्रल अलाइनमेंट है, बॉडी ही
अलग इसमें आती है। एक तो वो एंटीरियरली चली जाती है, पोस्टीरियरली चले जाके, जिसको जिनको आदत है ऐसे आगे झुक के चलने की, तो ये बॉडी पूरी पोस्टीरियरली चलेगी। जिनको आदत है पेट बाहर निकाल के चलने की, उनकी बॉडी एंटीरियरली चलेगी। तो ये भी है। और दूसरा ये आदत इन द सेंस जिनका पेट ही बड़ा है, वो पेट आगे ही रहता है, तो वो पूरी बॉडी एंटीरियरली चली जाती है, और लंबर जो कर्वेचर है वो भी एंटीरियरली चला जाता है। इसलिए जिनका पेट बड़ा है उनको ये तकलीफ होती है, उनको लंबर का बैक पेन रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली किसी भी तरह के बैक के डिसऑर्डर में। यस सर, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ये चेंज हो गया तो उनकी जो नर्व्स निकलती है, अब आप कितना ये हो रहा है, कर्व्स कितनी चेंज हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए आजकल बहुत बार तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि वो नर्व आपकी कॉम्प्रेस हो रही है। तो ये भी देखिए मेन कारण यही है कि वो वर्टिब्रा की जो कर्व है वो चेंज हो गई है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वो भी थोड़ा सा पोजीशन में कम ज्यादा होती है, चेंज होती है। वर्टिब्रल डिस्क दोनों वर्टिब्रास के बॉडीज में आनी चाहिए। कर्वेचर चेंज हो गया, वो डिस्क वही पे रह गई, बॉडीज थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, वो डिस्क थोड़ी सी आगे पीछे होती है। उस कारण जो वर्टिब्रल कैनल होता है, वर्टिब्रल फोरामेना होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, वो तो सेम रहे, पास होंगी विद कैनल। एक जगह पे डिस्क प्रोलैप्स हो गई, डिस्क पीछे आ गई, तो वो भी कॉम्प्रेशन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड का। जी जी। Doctor, very important topic today. और ये स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन 100+ इट वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई वुड Yes, sir. रिक्वेस्ट इसको आप आज ही मेल पे डाल दीजिए। सर अभी मेल कर रहा हूँ सर। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हाउ कैन बी टेक आउट, डू वी हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ दिस, अ परमानेंट रिकॉर्ड टू बी केप्ट बिफोर अस। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं स्पाइन की, कोई भी विधा हो, इट्स आयुर्वेद और योगा और एनी सिस्टम व्हाटएवर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। So I think we need a review at the earliest. You might be taking the emanating nerves in the next, I believe. So therefore, before that topic comes, we would be quite conversant with the entire system of a spine. It's a very, very important thing. So any hard copy, any book you recommend that the slides of this are available, or you just took it from the net? Actually, sir, the theoretical portion I have just collected from the BDC. When we share the timetable at the earliest lecture, I have just mentioned the page number also in that Okay. timetable. That we have collected that portion. So it is already mentioned in the books. I think in the start we have just shared that books also. It is BD Chaurasia, sir. Okay. But they are in the descript manner. In the BD Chaurasia, they are having the 4 parts. Cervical region, it is in the first part. Thoracic region, it is in the second part. And the lumbar region is also in the second part. So and the thorax in the second part. Thorax in the first part. Cervix in the third part. Lumbar in the second part. So it is in the distinct manner. So I am just collected from all that portion. यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वहां से पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है ताकि वो एक ही जगह पे पूरा मैटर मिल जाए। Yeah, it's a good capsule you have made. We need to be updated on this. Okay, sir. I have just shared this lecture. I'm just completing after this session. So पूरी nice. PPT में शेयर कर जी। जो पिक्चर्स है सर वो नेट से लिए हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर जो है वो बुक से लिया है। Yeah, we might be having some question next time when we just go through it. Mostly, I have just mentioned that mostly we are just in the next lecture we are taking the lecture as a discussion. Yeah. Because we are just discussing the results of the various researches, what they have performed, they have made, and what are the conclusion of that researches. Yeah. I think you'll be taking the pair of nerves also emanating from the vertebrae. Actually, I think we have just placed it in the separate session. अगर मैंने अभी टाइम टेबल देखा तो उसमें नर्वस सिस्टम ये हो गई थी, नर्वस सिस्टम हम देखेंगे कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स जो देखा था, देयर अदर जॉइंट, स्मॉल जॉइंट वगैरह, तो ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे।
कहीं पे हम ये कर लेंगे नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम बहुत बड़ी है, एक्चुअल में हमें क्या लेना है वो भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि नर्व्स कहाँ पे पास हो रही है वही देखना है, एक्शन मोड ऑफ एक्शन भी देखनी है, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन अलग है, कौन से रीजन को कौन सी नर्व पास होती है वो अलग है। अगेन दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ये हिस्से को कौन सी नर्व जा रही है, तो ये थ्योरेटिकल में जाती है कि वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, तो हमें Yes. इस पॉइंट ऑफ व्यू से नर्व्स देखने हैं, वो एक बार डिस्कस करके अगर पता चला तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता हूँ। Okay, 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 right. Good, That sir. would- Yes. 10:30. Yeah. Okay, okay, हाँ। okay. Next time. नहीं सर, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। We will discuss next time because we have the pain is also an important aspect. So I think the nervous system will have to be taken as he deems fit. हाँ, नहीं सही बात है, स्पेशली जो स्पाइन के अराउंड के नर्व्स एटलीस्ट वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारे आसन वगैरह जो है Yes. दे ऑल इम्पैक्ट दैट सिस्टम, तो Yes. वो कहीं ना कहीं वी विल फाइंड अ वे टू एटलीस्ट टेक द स्पाइनल नर्व्स। अगर Yes. ब्रेन नहीं भी ले पाए तो लेकिन Yes. स्पाइन के नर्व्स कहीं ना कहीं लेने का बिल्कुल हाँ। प्रयास करें। वो पहले पूरा ही आएगा, वो हमें पूरा ही क्या आएगा। देखना है। हाँ सर, हाँ सर। Yes. हाँ डॉक्टर बोल, ये जो है अगर हमको थोड़ा ट्वीक भी करना पड़ा टुवर्ड्स द एंड अपने टाइम टेबल को तो अपन ट्वीक हाँ, कर सर। लेंगे, बट महेंद्र जी की बिल्कुल ये दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है कि स्पाइन के अराउंड जो नर्व्स निकल रही हैं वो सारी योगा प्रैक्टिसेस उनको इम्पैक्ट करती हैं, वो जरूर हम कैसे न कैसे उनको Yes. फॉर्मली एक क्लास में लेंगे। यस सर, यस। हाँ? सिर्फ तो हम जब मैंने आप- हमें लगे तो बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगा कि हमें लेना क्या है, क्योंकि कैसा है जैसे अब नर्व्स है, नंबर ऑफ नर्व्स है, वो कहाँ पे जा रही है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आता है। जैसे अगर जी। मैंने फ्रेनिक नर्व डिस्कस की तो वो कहाँ पे जा रही है, तो हमें एक्चुअल में क्या क्या लेना है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, उस हिसाब से हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, Yes. तो हम देख लेंगे उसको क्या कर सकते हैं।